मैम जो आपने क्वेश्चन दिया था वो तो असाइनमेंट के अंदर टोटल क्वेश्चन थे। But yes, PDF file is visible. PPT is यस, visible. यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So in last class we have understand what we have understand. In last class we have understand how to calculate median. Yes. Remember क्या पढ़ा याद है ना? In last class we have यस मैम। understand Yes, how ma'am. how to calculate the median for the individual series, discrete series, and continuous series. So in this class we have take another example. In this example, what is the question? The question is this. Please wait. Question is the incomplete frequency distribution is given as follow. Means you have a data is given to you. इसमें आपको the frequency, the 30 to 40 the frequency is missing, the 50 to 60 the frequency is missing. So what is the question given that median? आपको इस question में median value is 46 आपको given है. Determine the missing frequency means आपको क्या find करना है? You just find the missing frequency f1 and f2. आपको f1 and f2 का value find करना है. तो first of all आपको क्या given है? आपको given है median. What is the median? Median is 46. For this question when we have write down the value of f1 or f2 का value when I am putting, so what is this? So it is value when I am putting, then the when we have calculate median, then median is 46. So the median is given, it is 46, and the total of frequency is 229. It is given to you. Okay. So what you want to find? आपको क्या find करना? आपको find करना f1 and f2. So let the frequency of class 30 to 40. I am just given the name f1, and 50 to 60 I am given the name f2. Okay. So f1 plus f2 is equals to 229 minus all this. मुझे पता है कि इन सबका सम कितना है. इस सबका सम मुझे गिवन है कि इट इज 229. ये गिवन है आपको क्वेश्चन में 229. तो मैंने लिख दिया 229. सो f1 एंड f2 क्या हो रहा है? f1 प्लस f2 क्या हो रहा है? इन सबका माइनस करेंगे देन इट इज f1 एंड f2. तो f1 प्लस f2 इज इक्वल्स 229 माइनस दिस मींस f1 प्लस f2 कितना आया? इट इज 79. Yes, this step is clear. Yes, ma'am. है ना? हमें टोटल पता है, टोटल पता था, टोटल 229 है. 229 है. जब मैंने इसका सम किया तो क्या हुआ? f1 प्लस f2 प्लस 12 प्लस 30 65 40 सॉरी 25 18 सबको सम किया. तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? f1 एंड f2 की चाहिए. तो आई जस्ट टेक f1 प्लस f2 मैंने इस साइड ले लिया और टोटल 229 में से मैंने क्या माइनस कर दिया? टोटल जो फ्रीक्वेंसी गिवन था उसको माइनस किया. तो इट इज f1 प्लस f2 इज 79. अब मुझे क्या मीडियन गिवन है? हाउ कैन आई हैव यूटिलाइज दिस? मीडियन इज 46. सो मीडियन इज 46 मींस ये मीडियन कहाँ लाई कर रहा है मेरा? इन दिस क्लास. यस या नो? Yes, sir. सो मीडियन इज लाइंग इन दिस क्लास 40 to 50. मैं भी 46 कैसे आए? ये 46 आपको क्वेश्चन में गिवन है. मीडियन. यस. ओके. So 46 your median is given. So आपका मीडियन किस में लाई कर रहा है? इन दिस क्लास इन, है ना? यही इसी के बीच में आपका मीडियन होगा 40 to 50 में. तो ये आपकी Hello? क्या हो गई? यस. Ma'am, if 65 is not here then F1 is here, so what we will write median? It is given in the question. Suppose जैसे आपको Ma'am, दिया this है area will be blank that. So what median will be right? F1. no. So what? Listen. What is the question? In this question आपको क्या फाइंड करना? आपको फाइंड करना मिसिंग फ्रीक्वेंसी. आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ f1 एंड f2. तो हाउ कैन यू फाइंड? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको मीडियन गिवन है कि व्हेन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन तो मीडियन कितना आएगा? 46 and the sum of the frequency आपको given है it is 229. By help of this two information, first the information this and second information this, you just find the value of f1 and f2.
यस। तो आपको क्या गिवन है, आपको मीडियन गिवन है 46। तो ये 46 कहाँ लाई कर रहा है आपका? यस, 46 लाई इन दिस इंटरवल 40 to 50। यस या नो? Yes, ma'am. Okay, 42. So we just find the cumulative frequency। हम इसका cumulative frequency find किया। तो यहाँ क्या आएगा पहले? It is 12। 12 plus 30 कितना हुआ? 42। अरे सही, यस या नो? Yes, ma'am. तो अब क्या है? Yes, 42 प्लस F1। F1 इज वेरिएबल है आपके पास। तो 42 प्लस, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज F1। ओके, देन 42 प्लस 65 प्लस F1, तो कितना आया? 65 प्लस 42 ऐड करो, कितना आ रहा है? अरे ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 107 प्लस F1 हो गया आपका। ओके, देन क्या F2 है, तो क्या हुआ? 107 प्लस F1 प्लस F2। ओके, ये आपका हो गया। सो ऑन जैसे हम निकालेंगे। सो वी हैव अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन इज दिस L प्लस H by F n by 2 minus C। L plus H by F n by 2 minus C। So we know the median कितना, मुझे पता median कितना, median is 46। तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, median का वैल्यू कितना है? 46। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, median is 46 for this question। तो मुझे आई नो कि median मेरा 46 है, तो मेरी median क्लास क्या हुई? इट इज माई median क्लास। 40 to 50 मेरा median कहाँ लाई कर रहा है? इसी के बीच में। तो माई मीडियन क्लास इज 40 to 50। तो माई लोअर लिमिट इज 40 प्लस व्हाट इज h? h is the magnitude difference, so it is 10। so I'm just putting it is 10। then what is the f? f is the frequency of the median class, so it is 65। so I'm just putting it is 65। then what is this? then क्या होता है? n by 2 minus c। तो what is n by 2? व्हाट इज, आपको टोटल पता फ्रीक्वेंसी का कितना है? 229। 229 डिवाइड बाय 2 इट इज 114.5। देन माइनस सी। Ma'am, यस, I'm not getting. Please, can you explain me again? okay, so it is the formula for the median। it is the formula for the median। what is the L plus H by F n by 2 minus C। हम जो भी सारी वैल्यू what we have write, what is L? L is the lower limit। what is H? H is the size of the class, means इनका difference कितना है? it is known as the magnitude। what F? F is the frequency of the median class। जो भी हम median class ये have made, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? n by 2। n by 2 मीन्स कैपिटल N क्या होता है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 माइनस c। c इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसेंडिंग मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास है उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो इट इज दिस। तो व्हाट इज c? c कितना आया मेरा? मेरा मीडियन क्लास कितना है? 65। तो 65 से पहले मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 12। फर्स्ट 12 थी, देन 42। 42 प्लस F1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 प्लस 30 प्लस 42। मैं दोबारा बताना, CF कैसे निकलेगी इसकी? 1 मिनट। देखो, इट इज योर CF। हम हाउ कैन वी कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? फर्स्ट कितना आया? 12। यस मैम। फर्स्ट 12 आया। सेकंड कितना है? 12 प्लस 30 42। यस मैम। 42 प्लस F1। 42 प्लस F1। हमें इतना ही चाहिए। चलो अभी तक तो मैंने इतना ही चाहिए। 42 प्लस F1। ओके, ये F1 है मेरा। ओके ना, मैंने इतना ही लिख दिया। ओके, सो 42 प्लस F1 मेरा ये आया। सो मीन्स इट इज माई मीडियन क्लास। ये मेरा मीडियन क्लास है। मेरा मीडियन कहाँ लाइक कर रहा है? माई मीडियन इज लाइक दिस 40 to 50 पे मेरा मीडियन लाइक कर रहा है। इट इज 46। तो मेरी मीडियन वैल्यू कितनी हुई? ये मेरी मीडियन क्लास हुई। मीडियन क्लास, इट इज माई मीडियन क्लास। तो व्हाट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं? सी क्या लेते हैं यहाँ पे? व्हाट इज द सी? मैम C क्लास इंटरवल। नहीं, सी इज द प्रिसेंडिंग। मतलब जो भी हमारा मीडियन क्लास होता है ना,
उसके ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो लेते हैं। इन लास्ट आई हैव एक्सप्लेन ना, देखो यहाँ पे सी था, यहाँ वो पे मेरा CF मीडियन क्लास लेते हैं। क्या है, सी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने यही तो नोटेशन बताया आपको, देखो ना, यस मैम, ये C आ is गया। the C is the cumulative frequency before the median class. So यस मैम, C is the बिफोर वाली cumulative frequency. Yes. मैम, So C उसके is the, ऊपर वाली, उसके ऊपर so वाली ये कितना, फ्रीक्वेंसी। ये 65 है, तो इसके ऊपर कितना है, 42 प्लस F1। यस मैम। यस, तो मैंने ये C का वैल्यू कितना है, 42 प्लस, या मैंने 12 F1 प्लस 30 प्लस F1 लिखा, तो 42 प्लस 2 F1। प्लस So I'm just putting the value, यहाँ I am just putting the value of here C. C is the 42 plus F1। तो मैंने जब इसको पुट किया, देन आई हैव सोल्व, तो मेरे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ पर सिर्फ F1 ही है, बाकी सारी वैल्यू नॉन है मुझे। तो व्हाट इज यस मैम। F1? F1 is the 72 minus 39, then F1 का वैल्यू आ रहा है 33.5, तो अप्रोक्सीमेट इट इज 34। Yes, it is clear. अरे सही, यस या नो, आपको F1 का वैल्यू आया या नहीं आया? Yes, मैम ma'am. ये तो समझ में आ गया मैम, ये मैम ये हाँ, नहीं आया फिर 72.5 कैसे? अरे भाई आप इसको सोल्व करेंगे ना, व्हेन यू सोल्व दिस इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन है, आप इसको सोल्व करिए, तो यू हैव डॉट, ये 72.5 माइनस F1 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाई 10, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई, आपको इक्वेशन सोल्व करना आता है ना ऑल ऑफ यू, हाउ कैन बी सोल्व? यस मैम। जैसे 46 माइनस 40 कितना आया, ये 4 आया, ये इधर जितना भी है इसको ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 65 है, तो 65, तो ये इधर चला जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई 65, ये बताइए आप, पहले आप लोग बताइए, आपको इक्वेशन सोल्व करना आता है या नहीं आता है? आता है मैम। आई थिंक सबको आता है। जैसे आपके पास ओनली वन वेरिएबल यू है, आपके पास क्या है, यहाँ पे F1 है, ओनली F1 इज देयर। यस, Yes, ma'am. है ना, आपके पास सिर्फ F1 है, आपके पास कितना वेरिएबल अननोन है, यहाँ पे सिर्फ F1 ही है आपके पास, तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ F1। यस या नो? यस मैम। ओके, Yes, ट्राई ma'am. करना, नहीं हो तो कल मुझसे पूछ लेना, ओके ना? मैं से पूछ रहा हूँ, मेरा, यस, मैं से पूछ रहा हूँ, मैं 46 माइनस 40 है ना? हाँ, यस मैम, ठीक। ओके ना, यू जस्ट ट्राई, आप अपना कैलकुलेटर देना, इसको सोल्व करके देना कि कितना आया। तो F1 का वैल्यू कितना आया मेरा, F1 इज 72 माइनस 39, तो F1 मेरा अप्रोक्सीमेट 34, 33.35 आया, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट इज 34। मेरे पास F1 की वैल्यू आ गई, F1 कितना आया, 34। अब मुझे क्या फाइंड करना, मुझे F2 फाइंड करना है, एंड वी नो दैट F1 प्लस F2 कितना आ रहा है, F1 प्लस F2 इज 79। तो मैंने यहाँ पर F1 की वैल्यू पुट की, कितनी, 34, मैंने यहाँ 34 पुट किया, तो F2 कितना आएगा, 79 माइनस 34, इट इज 45। तो आपका F1 कितना आ रहा है, F1 इज 34 एंड F2 इज 45। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? अरे सही, यस या नो? Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना, हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? सो इफ आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको यहाँ मीडियन वैल्यू गिवन है, तो इट इज द हिंट फॉर यू दिस कि अगर आपको मीडियन गिवन है तो यू हैव यूज द मीडियन का आपको यूज करना है। ओके, आपको मीडियन गिवन है तो यू हैव जस्ट यूज द मीडियन। ये क्या है आपको पता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, तो यू नो दैट कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, आपको पता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर मीडियन दिस, so you have just putting the value, all the value you have just put and then you have calculate. Okay, यस मैम। yes, all of you is agree, it is clear how to calculate? मैं एक बार एग्जांपल लेके वैसे समझा देना। क्या समझाऊं, ये एग्जांपल का भी एग्जांपल लेके समझाऊं क्या?
अरे बोलो, यस मैम। क्या नहीं समझ Yes, में, ma'am. आप बोलिए, क्या नहीं समझ में आया? मैम मैं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जो 46 माइनस 40 तो समझ में आ गया, ये 72.5 कैसे आया ये क्या है ये? अरे भाई आप इसको सोल्व करने का ट्राई करो तो सही। ये देखो कैसे आया, 46, ये 40 इधर में लेके गई तो क्या आया, 46 माइनस 40 हुआ। इट इज यस मैम। क्लियर। अब मेरा Yes, ma'am. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 65 है, 10 Yes, डिवाइड ma'am. बाय 65, यहाँ पे कितना है, ये कितना है One, मेरा, ये 114. 1.5 हाँ माइनस यस मैम। सी, मुझे सी माइनस करना, सी कितना है मेरा 12 प्लस 30 प्लस F1। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, ये 114.5 है, उसको किससे माइनस करेंगे, 12 प्लस 30, 12 प्लस 30 कितना हुआ, 42 माइनस हो जाएगा मैम। तो ये 42 इससे माइनस करोगे ना, व्हेन यू गेट इट इज द 72.5, ये मैं माइनस अब हो गया मैम, समझ में आ गई। हो जाएगा। अब तो यस, ऑल ऑफ यू एग्री, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ये ma'am. आपको इतना बेसिक है, ये तो मैथमेटिक्स में प्लस माइनस करना मैम आई थिंक मैम सबको। वो समझ में तो आ गया था मैम, मैं इससे सोच रहा था ये इसका ये 42.5 कैसे आया था, जो अब समझ में आ गया, अब तो कर लूंगा मैम। Okay. So, what is the merit and demerit of the median? Firstly, it is, what is this? Firstly, जो भी इसका formula होता है median, it is readily defined and मतलब whatever formula you have for median, it is simple and defined very clear and it is not affected by extreme value. Median आपका extreme value से affected नहीं होता है and it is easier and easily understand and it is easy to calculate. मीन्स मीडियन को कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड करना इट इज वेरी इजी। देन व्हाट इज द डीमेरिट, इतना मेरिट होने के बाद व्हाट इज द डीमेरिट? तो इन केस ऑफ इवन नंबर आपके पास है, इवन नंबर मतलब 248 इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन कैन नॉट बी डिटरमाइन एग्जैक्टली, आप मीडियन एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब हमारे पास इवन नंबर होता है तो क्या होता है, सपोज हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, तो सेंट्रल पार्ट क्या हो 2 और 3, तो हम 2 और 3 का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। So, जो भी वैल्यू आती है हमारे पास एग्जैक्टली नहीं आती, we have take average. So in case of even number of observation, median cannot be determined, exactly नहीं आता है। And what is the again demerit? It is not based on all the observation, ये कभी भी all the observation पे based नहीं होता। Why? Suppose ये मेरे पास एग्जाम्पल लिया मैंने 10, 25, 50, 60, 64, 5 observation I have. So what is the median for this? The median is middle value is 50. 50 is the median for this series. Suppose we can replace, मैंने 10 और 25 को replace कर दिया 15 और 35 से, then again it is 50. So median it is not based on all the observations. So and third is as compared with mean, it is affected much by the fluctuation of sampling. Means जब इसमें values में fluctuation होता है तो it is more affected as compared to mean. Then what is the use of median? Median is only an average. A median is a single average to use while dealing with qualitative data. जो भी आपका डेटा होगा ना, इट इज क्वालिटेटिव डेटा विच कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटेटिव बट स्टिल कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मींस व्हेन you want to find the average intelligence, average honesty among a group of people, if this kind of data if you have, then you have used the median. Okay, yes, it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have start new measure of central tendency. What is it? Is mode. So what is the mode? Mode is the value of the variable which have a maximum frequency. What is mode? Mode is the value of variable which have a maximum frequency. So for discrete series, तब आपके पास series है, x आपको given है, f आपको given है, तो you just check which variable, which value have a maximum frequency. तो यहाँ पे 25 maximum frequency है, yes या no? 25 is the maximum frequency. Ma'am. उसके corresponding जो value है, it is your mode. So for this question, mode is 4. So mode is the value of variable which have a maximum frequency, जिसका frequency कितना होगा, maximum होगा, 25 है,
तो 25 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है 4, तो mod is 4. So student always remember when you have calculate mod, median, mean, whatever you have calculate, आंसर जो आपका आएगा ना, it is always in आपका x में से आंसर आएगा. किस में से आएगा? x में से होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. So मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी इट इज योर मोड. यस, इट इज क्लियर फॉर डिस्क्रीट सीरीज. ओके ना, इन डिस्क्रीट सीरीज हाउ टू कैलकुलेट, आपको x राइट डाउन करना है, f आपको लिखना है, देन यू हैव जस्ट चेक कि जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू इट इज योर मोड. सो हेंस मोड इज 4. दैट mod for continuous frequency. Continuous frequency, so how to calculate? So it is how to calculate. Mod is L plus H F1 minus F0 divided by F1 minus F0 minus F2 minus F1. You have used this formula. What is this? L plus H F1 minus F0 divided by F1 minus F0 minus F2 minus F1. जैसे हमने मीडियन में मीडियन क्लास बनाया था ना, हमने मीडियन के लिए एक मीडियन क्लास बनाया था, देन वी हैव टेक द वैल्यू ऑफ एल एच एफ. तो यहाँ हम क्या बनाएंगे? एक मॉडल क्लास बनाएंगे. व्हाट इज द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास विच हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. जैसे यहाँ पे मैंने देखा 25 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 4. तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेटा होगा. कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? जैसे आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस में, अच्छा 20 हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में जो ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो ग्रुप होगा कॉन्टिन्यूस, इट इज योर मॉडल क्लास. तो सारी वैल्यू वी हैव कैलकुलेट बाय दिस मॉडल क्लास. तो व्हाट इज एल? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जो भी आपकी मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट एल होगी. एच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडल क्लास. F1 is the frequency of model class. Means जो भी मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी इट इज नोन एज द F1. What is F2? यहाँ पर F2 क्या है? F2 is the frequency of the after the model class. मतलब ये आपकी मॉडल क्लास है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी इट इज नोन एज द F2 and it is not a F1, it is the F0. Okay, it is F0. तो the frequency of the before the model class, जो मॉडल क्लास है उसके पहले जो फ्रीक्वेंसी इट इज नोन एज द F0. So by example I think we can easily understand. Suppose आपके पास क्वेश्चन है, क्या है? Find the mode for the following distribution. आपके पास डेटा गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है. सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्या होता है? विच हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो. तो यहाँ पे किसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है? 28. यस स्टूडेंट, मैम 28 है ना. तो ये हमारी मॉडल क्लास बन, ये जो मैंने ग्रीन रेक्टेंगल बनाया इट इज अवर मॉडल क्लास. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेट ऑल द वैल्यू. व्हाट इज एल? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास ये है, उसका लोअर लिमिट कितना है? 40. So I'm just writing here 40. What is H? H is the magnitude, means the size of the class. It is 10. 40 minus 50. कितना difference? It is 10. What is F1? F1 is the frequency of the model class. ये जो भी आपकी frequency model class कितनी है? I am writing 28. What is F2? F2 is the frequency of the after the model class. जो भी model class है उसके बाद वाली frequency it is 20. So I am just writing F2 is 20. What is F0? F0 is the before the model class. जो भी model class है उसके before the model class. What is the frequency? F0 is 12. Yes, all the variable is clear, all of you. Yes ma'am. सबको समझ में आया? How can we calculate F0, F1 and F2? Yes. Yes ma'am. Yes, it is clear. Yes ma'am. So we have just putting the value in this L plus H, F1 minus F0, F1 minus F0 minus F2 minus F1. I am just putting all the value. Okay ना, L is 40 plus H कितना आ रहा है? H is 10, F1 is 28 minus F0, F0 is 12.
फिर 28 minus 12 minus 28 minus 20. When we have solved, then we have got it is 46.67. 46.67. So your mode, what is the mode? Mode is the 46.67. Okay. Then we have one relationship between mode, median and mean. So mode is equals to 3 median minus 2 mean. सपोज समटाइम क्या होता है, आपको क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, मोड मीन गिवन है, तो आपको बोला जाएगा यू जस्ट कैलकुलेट द मोड. आपको कोई ऐसी टेबल वेबल नहीं गिवन होगा. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन. व्हाट इज मोड? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. यस, इट इज क्लियर? Yes, ma'am. इट इज क्लियर. समझ में आ गया हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोड? तो मोड कैलकुलेट करने के लिए वी हैव ओनली टू. फर्स्ट इज द डिस्क्रीट सीरीज है, तो यू हैव कैलकुलेट बाय दिस. जिसका भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा एक्चुअली इट इज योर मोड. और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में यू हैव यूज दिस फॉर्मूला. सो वन बाय वन यू हैव जस्ट राइट डाउन ऑल द वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट मेक अ मॉडल क्लास. आपको अज्यूम करना कि मॉडल क्लास कौन सा है. ये आपका मॉडल क्लास है which have a maximum frequency, so you just find the value of f1, f2, f0, h and l, and just putting the value in this formula, then your what is your mode? Mode is the 46.67. okay, yes, it is clear. Then what is the mode? Mode is not at all affected by extreme value. Mode भी extreme value से affected नहीं होता है. The formula of the mode is rigidly defined. मतलब जो भी formula है mode का, it is clearly defined. What is the demerit? It is not based upon all the observation. ये कभी भी all the observation पे based नहीं होता. ये just किस पे based होता है? जिसका frequency maximum है, it is your mode. यहाँ पर जब मैं 8 की जगह 10 भी कर दूँ, not affected. Okay. So it is only based on the maximum frequency. So it is not based on based upon all the observations. Second, it is not capable of further mathematical treatment. Means mode का हमारे आगे जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उसमें इतना यूज नहीं है. ओके. Mode is affected by the fluctuation of sampling. Then what is the use of mode? Mode is the average to be used to find ideal size. आपको जब भी ideal size find करना हो ना, then you have used the mode. Means in the manufacture of ready-made garments हुए, shoe size हुए, so in this type of situation you have used the mode. Yes, it is clear. Yes, student. Where you have used mode? Yes. Mode is we have used when you want to find the ideal size. आपको ideal size find करना हो ना, then you have used the mode. यहाँ पर हम mean apply नहीं करते. Suppose shoe size आपको find करना हो, so in such condition you have used mode. आप mean नहीं use कर सकते. Why? Suppose आपके पास 8 का size 3 है, 8 का 4 है, 8 का 5 है, 8 का again 5 है, 8 का 2 है. तो अगर मैं इसका मीन फाइंड करूँ तो मीन कितना आएगा? 5 + 5 10, 14, 14 + 3 15 आ गया ना. पाँच 15 नहीं, सॉरी 14, इट इज 40. तो 14 डिवाइड बाय 5, 14 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है. यस स्टूडेंट, इट इज 2 पॉइंट समथिंग. हेलो. यस स्टूडेंट, इट इज कितना आ रहा है इसका? टोटल इज 14. टोटल इज कितना आ रहा है इसका? 14. अब आप अगर इसका मीन फाइंड करते हैं तो डिवाइड बाय 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इट इज 2.9 आ रहा है. इट इज 2.9 आ रहा है. साइज इज 2.9. सो ये जो 2.9 आया है, ये आपके किसी को भी फिट नहीं आ रहा है. ना इसको फिट आ रहा है, ना इसको फिट आ रहा है, ना इसको फिट आ रहा है, ना इसको फिट आ रहा है. सो मीन इज नॉट अ यूजफुल इन सच केस. When you want to find the ideal size, you have just used the mode. Yes, it is clear. Yes, ma'am. Any question? No, ma'am. Yes, Annie, it is clear. Yes, Divya. Have you any question?
No, ma'am. It is clear? Yes, ma'am. So student, it is almost 12:06. So you have just start your online test on IMCRP. I have given 2 questions. Both the question is related to mole. Okay. Yes, ma'am.